کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 78 روپے سستا، فی کلو قیمت 470 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 54 روپے کم ہو گئے ہیں اور زندہ برائلر ہول سیل 312، پرچون ریٹ 324 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں استحکام، فی درجن قیمت 254 روپے مقرر۔ اسی پر مزید جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ ہاں جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نظر نامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر کمی دیکھنے کو ملی، اور اس کمی کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پیداواری لاگت کم ہونے اور پرچون مارکیٹوں میں کھپت جو ہے وہ گرنے کی وجہ سے قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ 78 روپے فی کلو تک یہ جو ہے وہ کمی کی گئی۔ برائلر گوشت کی قیمت جو آج سرکاری ریٹ میں مکمل کی گئی ہے وہ 470 روپے ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 54 روپے فی کلو تک جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کے 390، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائی ریٹ جو ہے وہ 312 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت جو ہے 324 روپے فی کلو مقرر کی گئی، اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ خوشائند ہے، لیکن یہ کمی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ عمومی طور پر یہی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی برائلر کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اور بلند سطح پر قیمتوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 254 روپے فی درجن کی سطح پر آج برقرار رکھے گئے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی قیمت جو ہے وہ پیٹی کی قیمت جو ہے 7500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شہر لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 200 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید موسم کا کیا حال ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے، جو اس وقت ایبٹ روڈ پر موجود ہیں۔ جی مبین۔ بالکل، اگر ہم بات کرتے چلیں شہر لاہور کے موسم کی تو موسم میں ہم نے دیکھا کہ فلکچویشن ابھی برقرار ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو آج کم سے کم درجہ حرارت 25 جبکہ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 42 ڈگری تک جانے کے امکان ظاہر کیے گئے، یعنی کہ پراپر ہیٹ ویو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، کہ یعنی کہ دوپہر کے اوقات میں جب سورج آب و تاب پہ چمکے گا تو اچھی خاصی شدت گرمی کی جو ہے محسوس کی جا سکے گی، یعنی کہ بہت فلکچویشن اگر ہم بات کرتے چلیں ایکیو انڈیکس کی تو شہر کا اوسط ایکیو انڈیکس جو ہے وہ بھی تقریباً 200 کے قریب ریٹ کیا جا رہی ہے، یعنی کہ ایکیو انڈیکس میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے، گرمی کی شدت میں بھی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پہناوا کا خیال رکھیں، لائٹ رنگ کے کپڑے پہنیں اور کوشش کریں واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ ہیٹ سٹروک سے بچ سکیں، اور کوشش کریں کہ ماسک کے استعمال قریب رہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایکیو انڈیکس میں بھی جو ہے وہ بتدریج اضافہ ہی سامنے آ رہا ہے۔ تو یعنی موسم کی فلکچویشن کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صحت کا بھی پورا خیال رکھیں تاکہ موسم کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ بہت شکریہ مبین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اوور بلنگ کے 31 کروڑ یونٹ عوام کو واپس ملیں گے۔ اپریل میں لیسکو میں کوئی اوور بلنگ نہیں ہوئی۔ کسانوں سے گندم پنجاب حکومت خریدتی ہے۔ کئی لوگوں کی کوشش ہے کہ میرے خلاف انکوائری ہو، حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف آئی اے ریجنل ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس۔ محسن نقوی نے ایف آئی اے کی اوور بلنگ پر کارکردگی بارے میڈیا کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا اپریل میں لیسکو میں کوئی اوور بلنگ نہیں ہوئی، باقی ریجنز میں بھی کم ہوئی۔ اوور بلنگ کے 31 کروڑ یونٹ عوام کو واپس ملیں گے۔ جو پبلک کو ریلیف ملا ہے وہ ابھی 31 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ کنزیومرز کو واپس کیے گئے جو اوور بلنگ میں آئے تھے۔ تو 31 کروڑ یونٹ واپس ہوئے ہیں، اوور بلنگ رک گئی ہے، اور ایٹ لیسٹ دیکھیں کسی کا بل اگر 5000 تھا اور اس کا 10,000 آتا تو اس کے لیے بہت میٹر کرتی تھی یہ چیز، تو کافی بڑا ریلیف ہے یہ جو مل گیا ہے لوگوں کو۔ گندم بحران کے بارے میں بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پنجاب حکومت کسانوں سے گندم خریدتی ہے نہ کہ دوسرے ملکوں سے۔ باہر سے کتنی گندم خریدنی ہے یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی کوشش ہے کہ میرے خلاف انکوائری ہو، حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے۔ پورے ملک میں گندم کتنی چاہیے، کتنا آنا چاہیے، کتنا باہر سے آنا ہے، کتنا پاکستان میں سٹاک موجود ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی 1% بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس پہ نہ کوئی غلط کیا ہے، کیونکہ ہماری ٹیم ایسی تھی کہ کہیں پہ بھی کوئی چیز اگر نیچے سے کوئی غلط آ بھی رہی ہوتی تھی تو میرے جو
सेक्रेटरी होता था, चाहे वो सेक्रेटरी टू CM, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए आपने ये नहीं करना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम सूबों के साथ मिलकर मंशियात के खिलाफ जंग करेंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस का इजरा जल्द शुरू होगा। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नरों ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने हिदायत की कि आवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए, मेरे समेत किसी की गलत बात नहीं माने। और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि यंग ऑफिसर्स को परफॉर्मेंस के ज़रिए ख़ुद को साबित करना होगा, अवामी नुमाइंदों की इज़्ज़त की जाए और हुकूमत की रट को हर सूरत कायम रखा जाए, लेकिन इंसानी वक़ार को भी बरकरार रखें। असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका इलाकों में 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये नान की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं। मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म के ज़रिए कम किया जाए। मुलाकात में सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब की तकरीब हलबर्दारी का मामला, नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलबर्दारी एक बार फिर मुलतवी हो गई है और तकरीब हलबर्दारी अब 10 मई को होगी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाना था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान ने नए गवर्नर से ओहदे का हल्फ लेना था। नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर नए गवर्नर की तकरीब हलबर्दारी मुलतवी की गई है और इस हवाले से सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि तकरीब गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की वतन वापसी के बाद होगी। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास और वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदुम बहरान पर हुकूमत की तरजीहात से आगाह किया। 11 मई को पार्टी के जनरल कौंसिल इजलास पर भी मुशावरत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। राना सनाउल्ला, आज़म नज़ीर ताडर और SN इकबाल भी इजलास में शरीक हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदुम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दी। पार्टी ज़राए ने मजीद बताया कि इजलास में 11 मई को होने वाले मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास के हवाले से भी मुशावरत हुई। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। मुशावरती इजलास में ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, बिलाल अजहर कियानी और अनूशे रहमान ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी का चेरिंग क्रॉस पर किसानों के हक में धरना, मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन ने कहा है कि हुक्मरानों ने अपनी कमीशन के लिए गंदुम इंपोर्ट की इजाज़त दी। हुक्मरान टोला पैसे न होने का बहाना करके गंदुम नहीं खरीद रहा। आज अल्टीमेटम का आखिरी रोज़ है, इसके बाद वज़ीर आला हाउस का घेराव होगा। ये रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के कारकुनों ने चेरिंग क्रॉस पर किसानों के हकूक के लिए भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शदीद नारेबाजी भी की गई। जालिम हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, किसान की जंग हाफिज के संग, किसान की जंग हाफिज के संग, किसान की जंग हाफिज के संग। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा धरना हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। हुक्मरान टोला पैसे ना होने का बहाना करके गंदुम नहीं खरीद रहा। 1 अरब से ज्यादा डॉलर तब खर्च किया गया जब पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत थी। हुक्मरानों ने अपनी कमीशन के लिए गंदुम इंपोर्ट की इजाजत दी। जुर्म जिसका भी है उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। आज अल्टीमेटम का आखिरी रोज है, उसके बाद वजीर आला हाउस का घेराव होगा। एक तो हुक्मरान टोला ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी वजह ये बताता है कि पाकिस्तान भर में पास्को के गोदाम गंदुम से भरे पड़े हैं कि ये 1 अरब डॉलर उस वक्त खर्च किया गया जब पाकिस्तान में 1-1 डॉलर की जरूरत थी। जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाज में आखिरी दम तक किसानों का साथ देने की यकीन दहानी करवाई है।
आपको बताएं कि गंदम बहरान हर रोज़ नई करवट ले रहा है। ऐवानों से लेकर आम आदमी तक हर कोई गंदम के मसले से दो चार है। शहर में नई गंदम की खरीदो फरोख्त सरकारी नर्ख से कम कीमत पर दस्तयाब है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर आम आदमी तक हर जानिब गंदम की गूंज। सरकारी रेट के बरक्स लाहौर में सस्ते दामों गंदम की फरोख्त जारी है। बागबानपुरा मार्केट में नई गंदम 3500 रुपए फी मन बेची जा रही है। गुज़श्ता बरस इन दिनों गंदम के नर्ख 4500 रुपए फी मन से भी ज्यादा थे। पुरानी गंदम महदूद मिकदार में दस्तयाब है, ताहम इसका नर्ख 5000 रुपए फी मन है। गंदम नर्ख कम होने से आटा भी सस्ता हो गया। चक्की आटा और फ्लोर मिल्स आटा नर्ख में भी नुमाया कमी आ गई। 175 रुपए किलो वाला आटा 160 रुपए में दस्तयाब है। 20 किलो आटे का थैला भी 2000 रुपए में मिल रहा है। गंदम और आटा सस्ता मिलने पर शहरी तो खुश मगर किसान मुतमईन नहीं। हमने यही गंदम पिछले साल 5000 रुपये मन ली और हमने अब ये 3600 रुपये मन ली है और हमने तकरीबन कोई 30 तोड़े लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे गंदम का। जो बेचारा ज़िम्मेदार है बेचारा बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि हमसे ये गंदम नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। ये ज़िम्मेदार से गंदम जो वो 3032 रुपये मन में पड़े हुए हैं वो, ठीक है। उनके पास जो गंदम है बेचारे परेशान हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, वो ज़ाया हो रही है। किसान कम्युनिटी का हुकूमत और मुतालिका हुकाम से सरकारी निरखों पर जल्द गंदम खरीदारी का मुतालिबा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। जायद गंदम खरीदारी के हवाले से मज़ीद होशरुबा इंकशाफात। जायद गंदम ना मंगवाई जाए, 2 साबिक सेक्टी खुराक की तजवीज़ मुस्तरद की गई। गंदम के कितने जहाज़ लंगर अंदाज हुए, कितने जहाज़ों में कीड़े मकोड़ों वाली गंदम थी, तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। साफ गंदम के और कीड़ों वाली गंदम के जहाज़ों का मामला। गंदम खरीदारी में नए नए हैरान कुन इंकशाफात का सिलसिला जारी। लाहौर न्यूज़ को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक गंदम दरामद के मामले पर 5 फेडरल वीट बोर्ड इजलास हुए। 19 दिसंबर 2023 के इजलास के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक साबिक सेक्रेटरीज उस्मान और मुजीबुर रहमान ने जायद गंदम की मुखालिफत की। बोर्ड मीटिंग के तीसरे इजलास से कबल 12 लाख मैट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट हो चुकी थी। जराये के मुताबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर इम्तियाज गोपान ने तीसरे इजलास के मिनट्स जारी नहीं किए। 23 फरवरी 2024 के चौथे इजलास में जायद गंदम मंगवाने की मंजूरी दी गई। इस इजलास में भी सेक्रेटरी फूड पंजाब उस्मान अली ने मुखालफत की, जिनका कहना था कि सरकारी गंदम के स्टॉक्स फ्लोर मिल्स मालिकान नहीं खरीद रहे। दूसरी जानिब दरामदी गंदम पर मचे वावेले की गुत्थी सुलझ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर से गंदम लेकर 214 जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। पहला बल्गारिया का जहाज 26 सितंबर 2023 को 49,698 मैट्रिक टन गंदम लेकर आया, लेकिन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक 13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम लेकर 28 जहाज आए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट में बताया गया कि 36 लाख मैट्रिक टन गंदम में से 13 लाख मैट्रिक टन गंदम कीड़ों मकोड़ों वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सेक्रेटरी कैबिनेट की तरफ से रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 1,67,114 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 567 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। आपको बताएं कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज़ कर दिया गया है। 1,67,114 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं और उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 567 इम्तहानी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 567 इम्तहानी मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं और 1,67,114 उम्मीदवार शिरकत भी कर रहे हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और 1,67,114 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 567 इम्तहानी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के सालाना इम्तहानात का आगाज़ कर दिया गया है और 1,67,114 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए 567 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। मुलाजमीन ने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना भी दिया। हड़ताल के बायस दफ्तरी अमूर शदीद मुतासिर होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज़। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। मुलाजमीन ने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना भी दिया।
हड़ताल के बायस दफ्तरी उमूर शदीद मुतासर होने लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर एंड टेक्निकल एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुलाजिमीन का कहना है कि डिस्पैरिटी अलाउंस, हाउस रिक्विजिशन और दीगर अलाउंसेस न मिलने पर सरापाए एहतजाज हैं। इंतजामिया फंड्स की किल्लत का बहाना बनाकर अलाउंस जारी नहीं कर रही, मगर नई भर्तियां की जा रही हैं। हमारा ना 44% दे रहे हैं, ना 15% दे रहे हैं, ना ये हमारी ईद के होती बेसिक होती है वो दी है, एडमिन ब्लॉक का ओवर टाइम होता है वो भी नहीं दिया। सब हमारे मराहत को ये रोक रहे हैं, जिसकी आज का ये पूरा हाउस मजम्मत करता है और उस वक्त तक हम एहतजाज करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। एहतजाज में शरीक मुलाजिमीन ने धमकी दी है कि अगर मुतालबात फौरी मंजूर ना किए गए तो कैनाल रोड पर धरना देंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का नौजवानों के लिए मुकाबला मौसीकी के इनेकाद का ऐलान। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और ख़वातीन मुजाहिरीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीमी इदारों में बच्चों को मौसीकी की तरफ राग़िब कर रही है, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का हुकूमती सतह पर मुकाबला मौसीकी के ऐलान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। वस्ती पंजाब और हल्का लाहौर के ख़वातीन ने प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक ख़वातीन ने प्ले कार्ड्स और जमात इस्लामी के झंडे उठा रखे थे। ख़वातीन मुजाहिरीन ने खूब नारेबाजी भी की। सदर जमात इस्लामी हल्का लाहौर उस्मा इमरान ने कहा, पंजाब हुकूमत नई नस्ल को मौसीकी की तरफ राग़िब कर रही है, जो काबिले मुज़म्मत है। हुकूमत मुकाबला मौसीकी को फौरी मंसूख करे। हुकूमत पंजाब ने जो ये नाच और गाने और इनके मुकाबलों का ऐलान किया है, इस ऐलान को फिलफौर वापस लिया जाए। और हम ये कहते हैं कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात के अंदर गरीब की रोटी होनी चाहिए। जो 21 करोड़ बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं, उनके लिए स्कूल्स होने चाहिए। ख़वातीन मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत नौजवानों को निसाबी और गैर निसाबी तालीम, इखलाकी तरबियत, रोजगार और हुनर सिखाने के मौके फराहम करे। मौसीकी जैसे प्रोग्राम्स के नकात से गुरेज किया जाए। मैं इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करती हूँ कि हमारे तालीमी इदारे इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि हम अपनी आने वाली नई नस्लों जो हैं उनको ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाएं जिसमें किरदार साजी का कोई रुख नहीं शामिल। म्यूजिक के जो बेबुनियाद प्रोग्राम तालीमी इदारों में चलाने की एक बेशरम कोशिश की जा रही है, उसको पाकिस्तान की हर मदर और हर बाप जो है वो इसकी मजम्मत करे, इसको रोकने की कोशिश करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुकाबला मौसीकी के बजाय नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।